तो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ फोंडा के एक स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल जूना बाज़ार फोंडा में है। तो यहाँ पे आने का रीज़न ये है कि यहाँ से मुझे एक इनविटेशन आया। तो यहाँ के 9th और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट है, मैं बताऊँगी। और अंडर रिटेल और टूरिज़्म, इस सिलसिले में इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो रिटेल के अंडर सेल्फ ग्रूमिंग या फिर अपनी स्किल डेवलपमेंट, इसके ऊपर बच्चों को टॉक देने के लिए, कुछ एडवाइसेस देने के लिए मुझे ये मौका दिया गया है। इस स्कूल के हेडमिस्ट्रेस और एक टीचर है डॉक्टर श्वेताशा, तो उनकी तरफ से मुझे इन्विटेशन आया। अभी फंक्शन शुरू हो रहा है, उससे पहले मुझे एक छोटा सा मेहंदी कॉम्पिटिशन बच्चों को जज है, उनको जज करना है। तो आपको आगे पूरा दिखेगा। Welcoming Sonia Yogendra Naik, a professional hailing from Nevra, Tiswadi, Goa. Sonia brings wealth of expertise and experience to our gathering. She holds a MA in English and completed a BA in 2019. With a background in nutrition courses, since 2006, Sonia boasts over 15 years of experience in this field. She further got skills with makeup and hairstyling diploma in 2012, accumulating a decade of proficiency in makeup artistry. Currently, Sonia serves as remedial educator and vocational trainer located in Margao. Previously, she enriched young minds as a teacher at Azmane High School, Nevra, where she taught English, social science and Hindi from 2019 to 2020. Additionally, Sonia is dedicated entrepreneur, operating successfully a professional makeup artist and hairstylist. Please welcome Sonia Yogendra Naik, an accomplished professional with a passion for education and beauty. Dedicated personality. She is from a field where she sings. She is from the musical background. She does lot of stitching, hand painting, and she has lot of interest with skill-based course. Okay, so in case if you all want to learn something from her, we would always welcome Aparna to be with us in future. Okay, so I would like Juhi Kotibaskar, a tourism and hospitality sector teacher, to welcome her. I'm very happy to know about National Skills Qualification Framework, that these teachers are really working hard for your future. So that if you have any skill, you all will develop it, you all will have better knowledge of it, and you all can use it in your future life to come up with success. Yes or no? Yes. So first of all, I'm very thankful to ma'am and Ma'am Shwetasha for calling me and giving an opportunity to teach you all or to help you all with your further likings or whatever you want to do in your career. Okay. So shall I continue in English or whether I continue in Hindi? You will be comfortable Hindi because I want to explain much. Hindi Konkani?
So both I will, if you have any difficulty, you all can ask me. ठीक है? और स्किन अगर मेरे जैसी है, डस्की स्किन कहते हैं, मेरी स्किन डस्की है, समझ में आया? इस पे अगर मैंने पूरा और सफ़ेद कर दिया तो मैं अच्छी दिखूंगी ना? नहीं, पूरा सफ़ेद कर दिया तो मुखौटा लगेगा। क्या लगेगा? तो ये दोनों स्किन, दो नहीं है, बहुत टाइप है, शेड्स बहुत रहते हैं, हमारी स्किन टोन अलग अलग रहती है। तो इस सब चीज़ों पे कैसे मेकअप करते हैं ये सब कोर्स में बताते हैं, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल से बताती हूँ कि बेस कैसे करते हैं। लगाते हैं, फेस को क्लीन करते हैं, क्लीन करने के बाद हम लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं। मॉइस्चराइजर सबको पता है, वो लगाते हैं, आप कभी भी यूज कर सकते हो। सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाया और स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज किया। 1 मिनट तक रुकना है, तो ऑलरेडी मैंने अभी टाइम दे दिया स्किन को मॉइस्चराइजर लगने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप रहता है प्राइमर। अब मैं इसका मतलब बताती हूँ कि क्यों लगाते हैं। प्राइमर लगाने से स्किन में ना अच्छी एक लेयर आ जाती है। अगर कुछ पोर्स है, खड्डे हैं चेहरे पर, तो वो पूरे भरने के लिए प्राइमर लगाते हैं। अभी आप लोग डेली मेकअप कर रहे हैं तो प्राइमर वगैरह यूज़ करने को आपको नहीं होगा, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, मैं अभी लगा रही हूँ, लेकिन आप विदाउट प्राइमर डेली यूज़ के लिए कर सकते हो। उनकी स्किन का जो कलर है ना, स्किन टोन है ना, उसी का लगाना। समझ में आया? तो फाउंडेशन खुद को जब कर रहे हैं तब ये मैं सेल्फ मेकअप दिखा रही हूँ, खुद को करने का, दूसरों को नहीं। दूसरों को करना है तो उसका बहुत प्रोसीजर अलग है, ये हाथ वगैरह यूज नहीं कर सकते, ऐसे उसका पैलेट रहता है। ये खुद को ऐसे थोड़ा सा लिया, इसको कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। ब्यूटी ब्लेंडर कहते हैं इसको, वेट करने का, पानी में स्क्वीज करने का, ऑलरेडी किया है। और इससे ब्रश से भी लगाते हैं, लेकिन मैं क्विक मेकअप, आपको तैयार होकर जाना है ये मत भूलो, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ। क्विक मेकअप है, डॉट डॉट आपने अप्लाई किया अपनी स्किन पे। स्किन करेक्टर पैलेट, इससे स्किन को करेक्ट किया जाता है। अलग अलग शेड के प्रोडक्ट रहते हैं। ये पिंपल के दाग छुपाने के लिए, अभी इनको नहीं है इसलिए मैंने नहीं लगाया। दाग सर्कल बहुत रहते ना कुछ लोगों को, वहाँ पे लगाकर वो छुपाने के लिए, लेकिन इसका यूज़ करने का तरीका और थोड़ा लंबा है। तो मैंने इसको फाउंडेशन लगा के ब्लेंड किया। थोड़ा और चाहिए, नहीं चाहिए श्योर? डार्क सर्कल से चाहिए? ये देखिए, 1 को में पूरा लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा ले आया, ज़्यादा नहीं। ये एरिया भी मुझे लग रहा है चाहिए। कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं ना जहाँ पे थोड़ा हाईलाइट करना पड़ता है। हाईलाइट का मतलब क्या? थोड़ा वहाँ पे गोरा लगना, मतलब थोड़ा सा उधर ज़्यादा लाइट लगना चाहिए कलर, अंडर आई, नोज पे, यहाँ पे, चिन पे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा लाइट दूसरा फाउंडेशन दे रही हूँ, बहुत ही कम। मैंने हाइलाइटर, मतलब हाईलाइट करने के लिए फाउंडेशन लाइट टोन का लिया है, जो ये इसका स्किन टोन नहीं है। अभी इसको मैं ब्लेंड करती हूँ, उसके बाद देखो।
फाउंडेशन इसको अभी लॉक करना है। जो फाउंडेशन लिक्विड है ना, फाउंडेशन लगाया चिपचिप है, उसको कैसे लॉक करने का, क्या लगा के, क्रीम लगाने के बाद क्या लगाते हो? तो अभी क्या लगाना है मुझे? स्माइल करो। स्माइल क्यों करवाते हैं? मसल्स को अपलिफ्ट करने के लिए। आप बताना कितना है, और चाहिए तो बोलो, तो फनी नहीं दिखना चाहिए। हाँ? तो क्या करें, लगा दे? श्योर? फनी दिखे तो आपके ऊपर, इतना भी नहीं कि सच में फनी दिखे, एकदम कम लगाते हैं। हो गया? ठीक है। और एक हाइलाइटर नाम की चीज होती है, क्या होता है इससे? चेहरे पे शाइन आ जाती है। क्या आ जाता है? शाइन। लेकिन अगेन क्या, ड्रेस के हिसाब से क्या अपना यूनिफॉर्म है, आउटफिट के ऊपर भी डिपेंड रहता है। तो इसीलिए अभी मैं एकदम नेचुरल जस्ट थोड़ा सा टिंट दे देती हूँ। ब्रश से लगाए ना तो ज्यादा लगेगा, जस्ट बहुत लगता है यार ये प्रोडक्ट। तो मैं इससे क्या कर रही हूँ, आया समझ में? स्माइल करो। इससे चिन पे भी लगाते हैं थोड़ा, मैंने बहुत कम लगाया है क्योंकि यूनिफॉर्म पे। अभी क्या रहता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये बेस हो गया। हाँ, आई मेकअप कुछ नहीं किया। डन। अभी मुझे क्या करना है, अगर आपको पसंद है तो आप काजल डाल सकते हो। पतला, इतना पतला कि वो दिखना भी नहीं चाहिए। समझ में आया? ठीक है, ये कलर जा रहा है, अच्छा लग रहा है के लिए। और वो लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए ये स्प्रे लगाते हैं, इसको मेकअप फिक्सर कहते हैं या सेटिंग स्प्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? फिक्सर या फिर सेटिंग स्प्रे। आंखें बंद करो, वो क्लाइंट को पूछना है कि आंखें बंद करे और ऐसे। तो इससे ये मेकअप वाटर प्रूफ है, ये जाकर अगर मुंह धोएगी ना तो कुछ नहीं जाएगा, मेकअप बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेकअप निकाल नहीं सकते, सिर्फ पानी मारा तो नहीं जाए। कीप नॉलेज ऑफ दिस प्रोडक्ट्स बॉयज, स्पेशली at least 4 to 5 products you will be needing every time. You all can't go to salon if you are working in that profession. हर बार भागोगे सैलून में मेकअप के लिए, तो आपको भी ये प्रोडक्ट सब जानकारी रहना चाहिए, रखना चाहिए। इनकी फेयर स्किन है, मीडियम फेयर टोन है कि नहीं? ठीक है। और अभी फिलहाल तो आपकी मैच्योर स्किन नहीं है लड़कों की, इसी लड़कों की एकदम मैच्योर स्किन रहती है ना, स्किन थिक रहती है। जब आप बड़े हो जाओगे स्किन थिक हो जाएगी। तो ये स्पॉट पे मैंने लगा दिया। क्या लगाया? करेक्टर। क्या लगाया मैंने? आपको देखना है स्किन पे कि और कहीं जरूरत है तो।
मेकअप करवाते हैं, मैं करती हूँ हाँ। तो जब उनका मुझे मेकअप करना पड़ता है, अभी वो दूल्हों का मेकअप तो बिल्कुल अलग होगा। आप लोग जब कोई भी फील्ड में जाओगे तो आपका खुद का मेकअप अलग होगा। It was such a unique session and such a good demonstration to us that I am short of words. But this is the first time that we are having such a session here. And one very good thing ma'am told us was we have to look pleasant for ourselves and not to impress others. This is a very good line, because once you look good and you feel pleasant, you feel confident equally. And that is the best part what grooming is, because it develops your personality. So I'm sure you all have learnt a lot. Myself and Shwetasha teacher definitely have taken a lot from ma'am's session today, and I'm 100% sure you people will definitely make use of this in the personal grooming when you start working in the industry, either in the retail sector or tourism sector. So I extend my gratitude to ma'am coming all the way here, and she's told us the importance of skills, how skills has now made her a self-employed person, and she's been having this experience since last 15 years, and she's a well-known makeup artist, and you all also can develop such skills, such unique skills. And as teacher just rightly mentioned, you have scope in the tourism and hospitality as well as retail sector, and you can become an entrepreneur as well. Thank you so much ma'am. Thank you.